All right, so ladies and gentlemen, good afternoon and assalamu alaikum. It is my pleasure to welcome you all uh, to today's webinar where we delve into the exciting and transformative initiatives initiated by Pakistan Stock Exchange, the online account opening, Sahulat account, and Roshan equity investment. These programs signify Pakistan Stock Exchange's commitment to making the capital market more accessible, inclusive, and investor friendly. In an era where digital transformation is not just a trend, but a necessity, the online account opening service stands as a testament to dedication for convenience and efficiency. This initiative basically allows potential investors to open brokerage accounts seamlessly from the comfort of their homes. By eliminating the need for physical visits and extensive paperwork, Pakistan Stock Exchange is doing its part in easing the entry barriers so that we can encourage more people to participate in the capital market. The streamlined process is designed to save time, reduce costs, and make the entire experience more user-friendly. Moving on to the Sahulat account. So this initiative is a tailored initiative that caters to small investors who want to start their journey in the stock market with ease and affordability. The Sahulat account offers a simplified account opening process with minimal documentation and minimum balance requirement. It is an ideal solution for those who wish to invest modestly and gradually build their portfolio. By promoting financial inclusion, we aim to empower every Pakistani to take control of their financial future and benefit from the growth of our economy. Now, let's talk about the Roshan Equity Investment Account. So, Roshan uh, Equity Investment Initiative is basically a program that is specifically designed for our overseas Pakistanis who wish to invest in their home country's stock market. Through the Roshan digital account, NRPs can easily and securely invest in equities listed on the Pakistan Stock Exchange. The initiative not only provides a convenient investment avenue, but also strengthens the connection between overseas Pakistanis and the economic development of Pakistan. The Roshan Equity Investment is a testament to our dedication to harnessing the potential of our diaspora and integrating their contributions into our national growth. In conclusion, the online account opening, Sahulat account, and Roshan Equity Investment are more than just services. They are part of Pakistan Stock Exchange's broader vision to democratize and innovate. We commit to make Pakistan Stock Exchange a vibrant, accessible, and globally competitive marketplace. I would thank you all for joining us today. I would look forward to your active participation in this session as we explore these initiatives further. Together, let us pave the way for a brighter, more prosperous, and a better overall future for investors, Pakistan Stock Exchange. My name is Fahad Asif. I represent Pakistan Stock Exchange as Senior Manager, Digital Media and Financial Literacy. And we would want uh, your participation as much as possible. That's why we have got the Q&A and chat session. Both of these sections enabled for you where you can type in your questions, and I would love to answer to each and every question that is related to today's presentation. And let's begin. So, online account opening, Sahulat account, REI, and more. So, to begin with, how to participate in the stock market. Previously, we talked about investment avenues, portfolio management, and other strategies that you should incorporate in order to build a good portfolio and um, make a profitable portfolio for yourself and to secure your future. Today, we are going to be talking about how to participate in the stock market digitally and otherwise. So here's how to participate in the stock market. So ways of becoming a shareholder in a company. So there is primary market, then there is secondary market, and then other benefits. So let's look at the initial public offering first. So primary market, or the IPO is basically when companies offer shares to the general public for the first time.
right, directly from the company through the share subscription form and deposits. So EIPO की जो facility है, it wasn't always there, but keeping in mind the increasing demand of an online platform from the subscribers, we incorporated this facility uh, fairly recently. So the EIPO facility is there. For example, अगर कोई नई कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, उसका आईपीओ किया जाता है, और उसकी सूरत उसके नतीजे में अगर आप एज एन इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं प्राइमरी मार्केट में, सो इन दैट केस आप जो है वो ईआईपीओ फैसिलिटी के थ्रू अपना जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और शेयर्स की खरीदारी वहां पे कर सकते हैं आप. नाउ सेकेंडरी मार्केट इज ट्रेडेड थ्रू स्टॉक मार्केट, यानी कि वंस द शेयर्स हैज ऑलरेडी बीन इशूड, और उसके बाद फिर ब्रोकर्स के थ्रू आप अकाउंट खुलवा के सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं शेयर्स की. सो दिस वुड बी द सेकेंडरी मार्केट. नाउ कम्स अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. Already listed companies raising additional capital to finance their expansion projects or to meet working capital needs. This is basically talking about from the company's perspective. Companies जब फंड जनरेट करना चाहती हैं या फंड रेज करना चाहती हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उस सूरत में कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से कांटेक्ट करके हमारे पास लिस्ट होती हैं. उसके नतीजे में उनके शेयर्स फ्लोट किए जाते हैं स्टॉक मार्केट पे, और एक जो जनरल ऑडियंस हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो आके जो है वो स्टॉक मार्केट पे वो उनके शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं. Also, when we talk about a right issue, a rights issue is when a company offers its existing shareholders the chance to buy additional shares for a reduced price. Usually, the discounted price will stand for a specified time frame, after which it is returned to normal. So now, how to begin? So, to start off, in order to begin, assuming that you do not already have an account, यानी आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे या तो कभी इन्वेस्टमेंट ना की नहीं है, या फिर इस वक्त आप वहाँ पे स्टॉक मार्केट का पार्ट नहीं है, यानी आपके पास कोई इन्वेस्टर अकाउंट नहीं है. उस सूरत में किस तरह से आप ये सारा प्रोसेस शुरू करके इन्वेस्टर बन सकते हैं. सो सबसे पहले आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने 2 से 3 ब्रोकर्स को आइडेंटिफाई करना है. उसके लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे मौजूद फाइंड अ ब्रोकर के बटन पे आप क्लिक कीजिए. अभी मैं आपको आगे चल के दिखा भी देता हूँ. उसके नतीजे में आपके पास जो लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में से आप अपनी मनपसंद 2 से 3 ब्रोकर चूज कीजिए और उनसे बात कीजिए. अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव उनके साथ डिफाइन कीजिए. पिछली प्रेजेंटेशन में, पिछले पार्ट में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कभी आप कोई पोर्टफोलियो बनाने जाते हैं, वेदर इट इज एन इक्विटी पोर्टफोलियो या उसमें दूसरे और एसेट क्लासेस हैं जैसे प्रॉपर्टी या इस तरह की कोई और चीज़ें, कमोडिटीज हो गई या म्यूचुअल फंड्स हो गए या और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या फ्रॉम द गेट गो. उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करेंगे और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स अपने सेट करेंगे. सो ये यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में वही बात की जा रही है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें सो दैट यू कैन मूव ऑन फ्रॉम देयर. सो वंस यू डू दैट, आप वो डिस्कशन कीजिए. देन आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो उसका स्टेटमेंट डेवलप हो जाए, एंड देन आइडेंटिफाइंग अ ब्रोकरेज फर्म टू फाइनलाइज, यू वांट टू कैरी मूव फॉरवर्ड विद देम. सो अब आप फाइनलाइज कर लीजिए अपने ब्रोकर को, एंड उनके साथ स्टेप नंबर 5 वुड बी यू ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट with that particular broker and a CDC sub account, right? So it is basically advisable to open your investor account at CDCIS as well, but for starters आपके पास एक brokerage firm के साथ account होना ज़रूरी है और एक CDC का सब account होगा जहाँ पे आपके shares की मौजूदगी होगी. Now the next step, the step number 6 would be depositing your money. So अपना पहला अमाउंट, पहली इन्वेस्टमेंट का जो भी अमाउंट होगा, आपका इनिशियल जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, सो वक्त ये आएगा कि आप अपने उन पैसों को इन्वेस्ट करें और आपकी इन्वेस्टमेंट का आगाज करें. तो स्टेप 7 वुड बी यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज पैसे इन्वेस्ट डिपॉजिट करने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपको यू वुड रिक्वायर टू बाय सर्टेन शेयर्स, राइट? सो
वंस यू बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, सो आपके पास एक होल्डिंग हो जाएगी शेयर्स की, तो दिस इज वेयर यू हैव स्टार्टेड योर इन्वेस्टमेंट. नाउ स्टेप नंबर 8 would be build a portfolio. इसमें आप ने अपने जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए होंगे उसकी बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा. यानी कि फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आपने कैटेगराइज कर लिया, या आपने इंडस्ट्री की बेसिस पे कर लिया, या इंडेक्स की बेसिस पे आपने अ, सोचा कि मैं इस तरह करता हूँ कि लेट से जो मेरा टोटल पोर्टफोलियो होगा उसमें मैं 20% जो है वो आईटी सेक्टर के शेयर्स ले लेता हूँ, 30% जो है मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर से ले लेता हूँ, और 20% मैं बैंकिंग से. इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से सेक्टर्स में से आप चूज करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, वो शेयर्स जो आप होल्ड करना चाह रहे हैं या बाय करना चाह रहे हैं फॉर trading in future, right? And once you are done with the entire process, then you would have to regularly follow up with your broker, because that is one of the key factors in when it comes to investing in a successful manner. Uh, if you would not be connected to your broker, because वो आपको एक trading platform provide कर देंगे, so you will have the power, the ability to be able to invest, sell, purchase or sell your shares on your own in any given time frame. Uh, so a lot of people just uh, continue doing this activity and do not discuss the current scenarios with their brokers. And इस सिचुएशन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या इस तरह के कोई फोरकास्ट मिस कर जाते हैं जो कि उनको पता होना जरूरी है. सो दैट वुड बी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर when finalizing your purchases or yourself. So some of you have been raising your hands. Can you please share? Okay. ब्रोकर का लिंक आप कह रहे हैं वो आपको अभी मैं शेयर कर देता हूँ. ओके. सो मुदस्सिर साहब पूछ रहे हैं कि डिपॉजिट. सो व्हाट विल डू इज आप लोग अपने क्वेश्चंस प्लीज शेयर करते जाइए Q&A सेक्शन के अंदर. वंस वी आर थ्रू विद द प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ों के बाद हम एक Q&A सेशन करेंगे जिस तरह यूजुअली हम करते हैं. आई वुड ट्राई टू आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट यू शेयर विद मी. बट होपफुली बाय द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन तकरीबन सब चीज़ों के जवाब मैं आपको दे चुका हूँ, बट जो रह जाएंगे इंशाल्लाह विल कवर दोज इन द एंड. सो वेयर टू फाइंड द ब्रोकर, ये लिंक जो जैसा आपने पूछा कि लिंक कहाँ है. सो वंस यू गो ऑन टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट, दैट इज www.psx.com.pk. अगर आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे हो रेड कलर से यहाँ पे लिंक आ रहा है, दिस इज वेयर यू हैव टू गो. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाइए, रिसोर्सेज एंड टूल्स ट्रैक होल्डर्स में जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे बिल्कुल राइट पे आपके पास ऑप्शन आएगा फाइंड अ ब्रोकर. आप फाइंड अ ब्रोकर की फ्लोटिंग विजिट पे क्लिक कीजिए तो आपको इस पेज पे लैंड कराया जाएगा, विच इज द लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स पेज. यहाँ पे आप अल्फाबेटिकली और दूसरे फिल्टर्स लगा के अपने मनपसंद शहर के अंदर अपने ब्रोकर को तलाश कर सकते हैं, यानी लिस्ट आप देख सकते हैं. और वंस यू हैव दैट लिस्ट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी ABCD के अल्फाबेटिकली ए के ऑर्डर में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ABM सिक्योरिटीज, AIC, इस तरह से सब आ रहे हैं. सो अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से यू वांट टू चूज AHM सिक्योरिटीज, सो इनका ट्रैक नंबर भी यहाँ पे मौजूद है, इनका एड्रेस मौजूद है. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू विजिट देम टू डिस्कस योर अकाउंट ओपनिंग process and everything, you can visit them. The city is Karachi, so since if you're living in Karachi, then this would be ideal for you to visit a brokerage firm in Karachi. Then there are the phone numbers, you can contact them and then set up an appointment and go and meet them. इसके अलावा ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेरीज. और लास्टली आप इनकी वेबसाइट पे जाके मजीद मालूमात इनसे हासिल कर सकते हैं. सो जिन ब्रोकर्स के पास वेबसाइट की फैसिलिटी मौजूद है, देर इज़ अ हाई चांस दैट वो आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हो. नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, यहाँ पे हमारे पास एक और लिस्ट मौजूद है जो मैं अभी आपको आगे चल के दिखा देता हूँ. सो दिस वुड बी द लिस्ट ऑफ brokers who are offering online account opening, which means that you can open an account while sitting at home through your phone on or your computer. So मैं आगे चलते हुए आपको वो वाली लिस्ट भी दिखा दूंगा so that you can have a better understanding of that as well. Now moving forward,
let's talk about online account opening since we just mentioned that आप घर बैठे बैठे भी आप ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं. So let's see कि वो प्रोसेस किस तरह से होता है. So first of all, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, प्रोसेस थोड़ा सा सिमिलर है बिकॉज जो मेन स्टेप्स हैं वो सेम ही रहेंगे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु इज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन अकाउंट. ऑफ इन दिस केस आपको जो ऑनलाइन अकाउंट खुलवाना है अगर, तो सिर्फ वही वाले ब्रोकर के साथ खुलवा सकते हैं ऑब्वियसली, जो ये फीचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. राइट. सो यू विल हैव टू गो टू द सिलेक्टेड ब्रोकर्स वेबसाइट. सो उनकी जो वेबसाइट होगी ब्रोकर की, वहां पे आपको विजिट करना होगा, जो कि इन्फॉर्मेशन आपको उसी पेज से मिलेगी जहाँ पे आपके पास लिस्ट है. आई एम अबाउट टू शेयर दैट लिस्ट विद यू एज वेल मोमेंटरीली. And the next step would be you would have to fill in the required registration details. जो आपकी basic details होंगी वो आपको provide करनी होंगी. And as a next step, NCCPL will receive the one-time password, which is the OTP request from the broker after registration of the customer. So जब आप broker के पास अपनी information provide करेंगे तो broker जो है वो आपकी information आगे जब प्रोसेस करेंगे तो ओटीपी के थ्रू रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म की जाएगी कस्टमर की, यानी आपकी. देन यू विल इवेंचुअली बी रिसीविंग एन ओटीपी. You will receive the OTP details from the NCCPL on your registered email address after the broker has requested the OTP generation to the NCCPL. आपको अपना जो OTP है वो अकाउंट ओपनिंग की स्क्रीन में एंटर करना होगा ब्रोकर की वेबसाइट पे. And then you will have to upload all the required documents on the website and submit the form, which may vary, but it basically would be the basic documentation like your CNIC and stuff like that. इसकी लिस्ट भी हम आगे चलते हुए I'll try to show you the checklist as well for the account opening. Now, as a next step, you will be receiving your account opening confirmation via your email, जो आपने email address provide किया है. And that should happen within a window of 24 hours after submitting all of your documentations along with the form that you'll be submitting. Now let's take a look at the online brokers list. So you have an understanding of how and what it looks like. Let me share with you my browser so you can see how we navigate through the website and get this information. I hope you can see my browser. So I have got psx.com.pk open here. Let's bring this down here. So let's go to the find a broker firm first. This is the area that you have to click through, and now you are at the find a broker page. जैसा कि मैंने आपको बताया, there are filters. तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपनी मर्जी के ब्रोकरेज फर्म को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन चूज इट सिटी वाइज or through an alphabetical order. Last but not the least is the list of brokerage firms, brokerage facilitating online account opening. So you click on this button right here. Now you can see the information about the brokers. So basically, this won't be in the alphabetical order, but you shall be able to get all the information here regarding the account opening. So for example, if you have to open your account with Alpha Capital, what you'll do is you'll get all the information here and then click on their website. Navigate to the website and then click on the online account opening feature button, and then you can submit your documents, and as discussed, you can open your account. Now, coming back to the website here for a moment. Now I'll switch the screen again so we can go back to the presentation. Since I'm constantly receiving the questions, there are a few that I would like to answer as we move on. So some anonymous attendee has asked that why don't users have direct registration on the website? That is because you have to choose a brokerage firm of your आपकी अपनी विलिंगनेस के हिसाब से जो आप ब्रोकर चूज करना चाहते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके आपको वहां पे करना होगा, एंड देन सारे प्रोसेस से आपको
हम जो है आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, एंड देन यू नेविगेट टू द वेबसाइट एंड ओपन योर अकाउंट. Yes, this is so. Mohammed Yasir asked, so is this the last webinar? Yes, for this series, this would be the last of the third last part. Can we open an account other than a brokerage firm? No, you will have to open an account with a brokerage firm of your choosing, and that's how you will begin your investments. Chale, let's move on towards. I'm leaving some of the technical questions for later, and let's get back to the presentation again. So moving on. Now we've talked about the online account opening. Let's talk about Sahulat account. So as you have just found out that online account opening is a very easy process for anyone to open account and start investing in the Pakistan Stock Exchange. But to make it even easier, we have launched another feature, another option that is called Sahulat account. So what Sahulat account is all about is basically it's an account for retail investors who want to invest in the stock market with utmost convenience and simplicity to save you time and hassle both. An investor can start by just filling a simplified account opening form and submitting a copy of CNIC. Again, this form can be acquired from your desired broker's website. Within, you can get it online. And Sahulat account is also an ideal opportunity for local investors. Whether you are a student, housewife, कोई आप नए investor हैं जिसको बहुत ज़्यादा investments के बारे में नहीं पता है, या आप कोई स्टूडेंट हैं, या आप कोई घरेलू खातून है, किसी भी सूरत में आप सहूलत अकाउंट को खुलवा के आसानी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज इससे कर सकते हैं. अब यहाँ पे बस डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट और सहूलत अकाउंट, उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफली बात कर लेते हैं. यहाँ पे आपको परचेजिंग पोजीशन दी जाती है, यानी कि आप बेसिकली 1 मिलियन तक इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं इन कंपेयर टू द अदर स्टैंडर्ड अकाउंट, जहाँ पे आपके पास इस तरह से लिमिटेशन 1 मिलियन की नहीं है. नाउ सम ऑफ यू वुड बी थिंकिंग कि हम 1 मिलियन के अमाउंट के पहुंचने के बाद इफ यू वांट टू इन्वेस्ट मोर मनी, सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. सो उसका सिंपल तरीकेकार ये है कि आप 1 मिलियन को क्रॉस कर रहे हो तो आप अपने अकाउंट को, सहूलत अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं टू अ स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो द प्रोसेस वुड बी प्रीटी इजी. आपको सिर्फ अपने ब्रोकर से कांटेक्ट करके अपने आप को ट्रांसफर करवाना होगा टू अ स्टैंडर्ड अकाउंट. Now let's take a look at the steps real quick. So step one would be you select a brokerage house. Again, the same thing. Connect with your chosen brokerage firm and request for account opening. Same thing. जैसे कि आपने जनरली नॉर्मल अकाउंट खुलवा रहे हैं उसी तरह स्टैंडर्ड अकाउंट की तरह सेम प्रोसेस है. बट ये याद रखिए कि यू कैन नॉट हैव साइमल्टेनियस टू अकाउंट्स, एक सहूलत अकाउंट और एक रेगुलर अकाउंट हो. यू शुड हैव जस्ट वन अकाउंट, आइदर सहूलत और आइदर द स्टैंडर्ड अकाउंट. Now as a step 3, you fill account opening form and attach your copy of CNIC, and then eventually submit your form to the brokerage house for processing and account openings, and that is all. This is how you open a Sahulat account. Now, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जिसके बारे में बात करनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो सहूलत अकाउंट है वो ईच इन्वेस्टर के लिए एज अ सिंगल इंडिविजुअल अकाउंट खुलता है, ना कि एज अ जॉइंट अकाउंट होल्डर. उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है. और सहूलत अकाउंट होल्डर जो है वो अपने, जैसा मैंने आपको बताया, आसानी से अपने उसको नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड आप एक और जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आप यहाँ पे जो है फ्रीली रेगुलर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर, जो कि रेगुलर मार्केट, रेडी मार्केट भी कहलाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. जबकि आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है आपके पास, तो आपके पास और भी उसमें ऑप्शंस होते हैं डिफरेंट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, वो यहाँ आपके पास मौजूद नहीं है. जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग इन लेवरेज प्रोडक्ट जैसे मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम, मार्जिन फाइनेंसिंग, stock lending, borrowing, negotiated deals market, all of which are restricted in this account. So why? Because saving, it saves investor from unnecessary risk. As I said earlier, Sahulat account is basically for people who up and coming investors, so जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. So just to keep them in a better safety environment, ये चीजें इसको जो है वो सिलेक्ट किया गया है for the Sahulat account.
अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जो सहूलत अकाउंट है वो मोस्टली जितने ब्रोकर्स हैं तकरीबन सब आपको ऑफर कर रहे हैं, बट वी रिकमेंड एंड एडवाइस दैट वेन एवर यू वांट टू ओपन द अकाउंट, यू फर्स्ट आस्क योर डिजायर ब्रोकर कि भाई मुझे सहूलत अकाउंट खोलना है। वंस दे से कि ठीक है वी ऑफर द सहूलत अकाउंट, और उसके नतीजे में फिर आप उनके साथ सहूलत अकाउंट अपना खुलवा लीजिए। सो नेक्स्ट अप, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सो रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है, ये जो इनिशिएटिव है, बेसिकली इट इज फॉर द ग्रोथ एंड prosperity of Pakistan. And if you are living as a Pakistani living abroad, this is perhaps one of the best options and very lucrative options for investment for overseas Pakistanis. Now, REI जो है वो आपको इन सिंपल वर्ड्स अलाउ करता है कि पाकिस्तान से बाहर रहते हुए आप अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। कुछ लोग आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नई बात है, ये तो लोग पहले भी करते थे। तो बिल्कुल करते थे, बट द प्रोसेसेस वर वेरी डिफिकल्ट एंड कम्बरसम पहले, जिसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता था और प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल वुड हैव टू कम टू पाकिस्तान फॉर द बायोमेट्रिक्स एंड ऑल आउट ऑफ अदर थिंग्स। बट इस सिचुएशन के अंदर अभी जो करंटली रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें उन सब चीज़ों को आसान बना दिया गया है, और ऑनलाइन है सारी चीजें। किस तरह से है उस वो भी हम अभी आगे चल के देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो फर्स्ट एंड ओनली इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए है, जो कि रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू खोला जा सकता है, राइट। एंड as an investor living overseas, if you're living abroad as a Pakistani, you have a wide array of conventional and Sharia compliant स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के आपके पास सुकूक्स वगैरह के ऑप्शन है, जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में। सिर्फ और सिर्फ आपको एक अकाउंट खुलवाना होगा स्टॉक एक्सचेंज में, और उसके नतीजे में आप जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन चूज करना चाह रहे हैं वो आप चूज करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे लिंक्स आप देख रहे हैं, अभी मैं शॉर्टली आपके साथ ये सब लिंक्स चैट में शेयर करने वाला हूँ, सो दैट वंस द प्रेजेंटेशन इज ओवर आप इन तमाम ट्यूटोरियल्स को अपने पास डिटेल में देख सकें। और अगर कोई चीज़ यहाँ पे आपने वेबिनार में मिस कर दी है तो वो वहाँ पे आपको एक तरह से रिकैप भी मिल जाए। इवन दो आई एम ट्राइंग टू टेल यू द इंटायर प्रोसेस, बट अगर कुछ आप मिस कर जाएं या कुछ मैं मिस कर जाऊं तो वो वहाँ पे आप कवर कर लीजिएगा। जो हजरात पूछ रहे हैं कि ये थर्ड पार्ट है वेबिनार का, पहला और दूसरा कहाँ मिलेगा, आपको पहले और दूसरे वेबिनार के लिंक्स जो है वो ईमेल भी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं। दोज आर अवेलेबल ओवर देयर। मजीद अगर आपको लिंक्स ना मिलें तो आप info@psx.com.pk पे भी ईमेल करके वो लिंक्स हमसे हासिल कर सकते हैं। Now coming back to the Roshan equity investment, so it's basically जिसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यू हैव टू बेसिकली ओपन योर रोशन डिजिटल अकाउंट और लॉग इन टू योर एग्जिस्टिंग आरडी अकाउंट। बहुत सारे लोगों के रोशन डिजिटल अकाउंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको चाहिए रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो कि रोशन डिजिटल के अम्ब्रेला के अंडर आता है। अगर आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं है तो आपको रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना है, और उसके बाद फिर उसके अंदर जाके आपको रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मौजूद है वो आपको खोलना होगा फ्रॉम योर आरडीए पोर्टल या ऐप। और वंस इट इज डन, आप अपने मर्जी के कोई भी ब्रोकरेज हाउस को सिलेक्ट करें और टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके यू स्टार्ट ट्रेडिंग, अपने ट्रांसफर करेंगे आप फंड्स रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, जो कि सीडीसी अकाउंट है। एंड देन यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स एंड मेक योर पोर्टफोलियो एज पर योर डिजायर। Now, before investing in the stock market, it is important to practice on how to invest in the stock market using PSX's My Portfolio app. So, अगर हम इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं और हम ये सब बातें कर रहे हैं कि अकाउंट कैसे खोलें, क्या प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम मिस कर देंगे वो होगी कि हम प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सीखे कैसे। क्योंकि वी टॉक अलॉट अबाउट थियोरेटिकल स्टफ, हम बहुत सारी फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं अक्सर,
या हम प्रोसेसेस देखते हैं, या जैसे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। बट जब तक कि आप एक्चुअली मार्केट में किसी ना किसी किस्म की ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉपर उस तरीके से एक्चुअल मार्केट में रियल विद द रियल मनी इन्वेस्टमेंट करने का तजर्बा ज़ाहिर नहीं होगा, और उतने इफेक्टिवली आप इन्वेस्टमेंट्स कर भी नहीं सकेंगे। तो अब अपने पैसों को या किसी भी किस्म का रिस्क लिए बगैर किस तरह सीखा जाए, तो उसके लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक फीचर लॉन्च किया था कुछ अर्से पहले। इट्स बेसिकली लिटिल प्लेटफॉर्म कॉल्ड माई पोर्टफोलियो। सो माई पोर्टफोलियो बेसिकली क्या है, हमारे पास जो DPS है, विच इज़ द डेटा पोर्टल ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, माई पोर्टफोलियो के नाम से हमने यहाँ पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है। इट इज़ बेसिकली अ वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना सकते हैं और अपनी रियल मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विद वर्चुअल मनी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं आपको अभी कुछ देर में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि इस वेबिनार के बाद आप इसको एक्सप्लोर कर सकें, अकाउंट खुलवा के यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकें। सो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं क्या कुछ है यहाँ पे वर्चुअल पोर्टफोलियो में, किस तरह से कर सकते हैं आप। एज आई सेड, इट्स अ फ्री टू यूज प्लेटफॉर्म। It allows new investors to learn about stock trading using virtual money. आपको जो है वो डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है ताकि आप अंडरस्टैंड कर लें, और सबसे मजे की बात यह है कि ये एक्चुअल मार्केट के अंदर से डेटा फैच करके आपको देता है। यानी रियल मार्केट के अंदर जो नंबर्स हैं उसको यूज करते हुए आप ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग अबव ऑल। इट्स अ यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म फॉर इनएक्सपीरियंस इन्वेस्ट। जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। मतलब इतना आसान है कि कोई बच्चा भी इसको बहुत आसानी के साथ नेविगेट कर सकता है। किस तरह है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इट ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट ऑल्सो अलाउज यू टू क्रिएट मल्टीपल पोर्टफोलियोज। ना सिर्फ ये कि आप एक पोर्टफोलियो या क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि मल्टीपल पोर्टफोलियो बना सकते हैं ताकि आप उनको कंपेयर कर सकें अगेंस्ट ईच अदर। रादर कि आपने एक पोर्टफोलियो बनाया और लेट से आपको उसमें प्रॉफिट हुआ, तो आपने सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सीखा, और आपने लॉसेस किस तरह होते हैं, लॉसेस कैसे हैंडल करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, वो वाला एस्पेक्ट मिस हो गया। या आपने कुछ पैसे लूज किए वर्चुअली और आपने फिर अगर कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया, तो वो वाला एस्पेक्ट मिस हो गया। तो जब आप मल्टीपल पोर्टफोलियो बनाते हैं विद इन दिस प्लेटफॉर्म, तो यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू बेसिकली यू नो कंपेयर डिफरेंट पोर्टफोलियोज विद ईच अदर। तो उसके उससे आपकी लर्निंग बेसिकली बढ़ती है। सो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। राइट एंड जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको बाय और सेलिंग के लिए, बाइंग और सेलिंग के लिए जो वर्चुअल मनी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप ये सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, एंड आपको रियल टाइम के अंदर मार्केट डेटा के साथ आपको ये सब एक्सपीरियंस करने को। नॉट ओनली दिस, बट यू विल ऑल्सो बी एबल टू trade shares and view profits, transaction summaries, and portfolio graphs. These are some of the key elements that are available over here. आगे चल के मैं आपको इसके बारे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा भी दूंगा, but let's see how it works. Uh, so once you will visit this particular platform, which is the My Portfolio, uh, but before I show you this, I think I should perhaps try to share with you the website where it is. So we go to the data portal and we click on my portfolio. I hope you can see the screen. So जहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल लैंड ऑन टू द लॉगिन स्क्रीन, एंड देन देयर इज अ साइन अप स्क्रीन। सो लॉगिन हम तब करेंगे जब हमारे पास अकाउंट मौजूद होगा, बट फर्स्ट विल गो ऑन टू द साइन अप स्क्रीन। सो यही वाली जो साइन अप स्क्रीन है, ये आपको यहाँ प्रेजेंटेशन में दिखाई जा रही है। सो वापस आते हैं साइन अप की तरफ। आप अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, लोकेशन, और ये चंद एक चीज़ें और हैं, पासवर्ड वगैरह, ये एंटर करेंगे, और इसके बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे आप। देन यू विल बी साइंड इन टू द प्लेटफॉर्म। और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है और आप वापस रिविजिट कर रहे हैं, तो लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे, एंड देन यू विल हैव ऑल द ऑप्शंस जहाँ पे आप वर्चुअल करेंसी के थ्रू फ्रॉम PKR 100 टू 100 मिलियन की डिनोमिनेशंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सीख सकते हैं यहाँ पे विद द वर्चुअल मनी। डैशबोर्ड पे आपके पास टोटल पोर्टफोलियो और आपकी इन्वेस्टमेंट की सारी डिटेल्स आ रही हैं, ग्राफ्स आ रहे हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी पोर्टफोलियो की, पूरे साल में क्या कुछ हुआ, सारा ब्रेकडाउन आपको नजर आएगा अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स वगैरह का। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे बआसानी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड्स हैं पोर्टफोलियो के,
यहाँ पे ब्रेक डाउन है सेक्टर और इक्विटी वाइज। जब आप इस पर माउस से हवर करेंगे तो आपने सेक्टर्स के हिसाब से देख पाएंगे। यहाँ पे कलर से भी डिनोट किया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल आपका कौन सा जो सेक्टर है या कौन सा जो आपका शेयर है, वो आपको यहाँ पे कितनी परसेंटेज है, कितनी वेटेज है उसकी आपके पोर्टफोलियो के अंदर, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। राइट, और अगर सेक्टर पे क्लिक करेंगे तो वो सेक्टर वाइज आप देख पाएंगे वहाँ पे टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू। दिस वुड वेरी डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास आपने कितने पैसे जो हैं वो इनिशियली अपने आप को असाइन किए अपने पोर्टफोलियो को, और उसमें से कितना आपने यूटिलाइज करा है अपने कैश को, और जो कैश बचा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैश दिखाई देगा कि कितना कैश आपके पास बैलेंस में मौजूद है। बाकी इसके अलावा टोटल रिटर्न्स, मार्केट वैल्यू, एक्विटीज, ये सारी चीज़ें और टुडेज रिटर्न, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नाउ इफ यू क्लिक ऑन द बाय, तो बाय पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यू विल बी एबल टू मेक योर ट्रेड। So for example, if you have to buy a PSX share, then you will put in PSX in the field. उसके अलावा आपका डेट आ रही है, ट्रेडिंग कब हो रही है, स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है, लेट्स अज्यूम 500 खरीदना चाह रहे हैं आप, तो आपने 500 एंटर किया। शेयर प्राइस आपने जो है आपकी फॉर एग्जांपल अगर आज की तारीख में है 14.85, तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। इसके अलावा ब्रोकरेज की फी जो है आपको वो शेयर के हिसाब से जो है परसेंटेज यहाँ पे शो की जाएगी। एंड देन नेक्स्ट अप वुड बी कैश बैलेंस। सो ऑब्वियसली जब आप ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जितने अमाउंट की परचेज करने लगे हैं उतने अमाउंट आपके पास आपके बैलेंस में मौजूद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपकी ट्रेड फेल हो जाएगी, आपके पास एरर आ जाएगा कि आप वो पर्टिकुलर चीज परचेज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके पास टोटल आ जाएगा कि आपने अगर 500 शेयर खरीदना है एट द प्राइस ऑफ 14.85, तो आपको 7,440 रुपये उसकी टोटल कॉस्ट बन रही है जो आपको पे करनी होगी, इंक्लूडिंग दैट इंक्लूड्स द ब्रोकरेज फी एज वेल। सो टोटल वुड बी कॉस्ट वुड बी 7,425, ब्रोकरेज फी वुड बी 15 रुपीज एंड टोटल कॉस्ट वुड बी 7,440। अब आप बाय पे क्लिक करेंगे, सो आप जो है यू विल बी एबल टू बाय दैट पर्टिकुलर शेयर थ्रू द वर्चुअल मनी इन द वर्चुअल environment. And once you're done with that, you shall be able to see that particular share in the list of your total uh, available shares. और अगर आप समरी में जाएंगे पोर्टफोलियो की, तो वहां पे आप सारी डिटेल्स देख पाएंगे अपने शेयर्स की। यहाँ पे एज एन एग्जांपल जो पोर्टफोलियो बनाया गया है वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शेयर्स हैं, जैसे नेटसॉल, टीआरजी, एजीटीएल, लकी सीमेंट वगैरह। तो इस तरह से आपका भी पोर्टफोलियो आपको दिख रहा होगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं। इसमें क्वांटिटी, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, करंट प्राइस, करंट वैल्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट फॉर एन इन्वेस्टर, वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा गेन लॉस और पोर्टफोलियो का वेट, जो हमने वेटेज के पीछे बात की, वो यहाँ पे मौजूद है। सो समरी की हमने बात कर ली, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। यहाँ पे सेम चीज है बट स्टॉक्स वही हैं, बट उनकी मजीद डिटेल्स है। ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री बेसिकली ये है ये कि आपने कौन से दिन या कौन से वक्त आपने क्या ट्रेड की, उसकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे। क्या टाइप है, क्वांटिटी कितनी है, शेयर प्राइस कितनी है, ब्रोकरेज का शेयर कितना है, और ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी है, वही सारी चीजें यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाले पेज में आप जाके देख सकते हैं। और ये सारी चीजें वेरी कर जाएंगी जब आप अपने किसी भी पोर्टफोलियो में जाएंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देयर मे बी मल्टीपल पोर्टफोलियोज डिपेंडिंग ऑन योर डिजायर कि आप कितने पोर्टफोलियोज क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने सीखने के लिए, तो वो आपके उस पर वेरी करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द information resources of Pakistan Stock Exchange. So, when you talk about the basic understanding of shares, uh, इसके अलावा फंडामेंटल रिसर्च एनालिसिस वगैरह, तो उसमें आप जब यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास जो करंटली जो इंडिसेस हैं, यानी जो इंडेक्स जो भी मौजूद है हमारे पास, जैसे KSE 100, KSE ऑल शेयर, ये जो सारे हैं ये आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट, स्टॉक के टिकर के साथ मेन वेबसाइट पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की psx.com.pk में मिल जाएंगे। मार्केट की समरी अगर देखना चाह रहे हैं इन डेप्थ सेक्टर वाइज, तो वो आप लिंक यहाँ मौजूद है, ये आप यहाँ पे जा सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर डेटा पोर्टल पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर मार्केट समरी की बात करें तो समरी को समझना तो इट्स प्रीटी इजी। यहाँ पे आपके स्क्रिप्ट यानी जो भी शेयर्स हैं वो उनके जो सिंबल्स हैं वो आ रहे हैं, कितनी प्राइस है उसकी, और आज की तारीख में कितना हाई रहा, यानी उसकी शेयर की प्राइस कितनी ऊपर गई, और लो मतलब कितनी नीचे गई, उसके नंबर्स दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है चेंज, यानी कितने रुपए का आपने शेयर खरीदा हुआ था, यानी जो उसकी एक्चुअल ओरिजिनल प्राइस चल रही थी। फॉर एग्जांपल आज के दिन में अगर
जैसे यहाँ पे GASF दिया हुआ है 5.98 रुपीज़ का ओपन हुआ, और इस वक्त करंट अगर लेट से उसकी प्राइस है 5.98 की जगह 6 है लेट से, तो 0.02 का आपको उस पर बेनिफिट होगा। इस तरह से अ, ये आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पे GASF की डिटेल्स आ रही हैं, टोटल वॉल्यूम जो है कितना है वो यहाँ पे पता चल रहा है आपको। इसी तरह से आप ये इसको चेंज होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा फीचर है स्टॉक स्क्रीनर का, वो मैं आगे चल के दिखा देता हूँ आपको। वो आपको हेल्प करेगा आपके उन शेयर्स का एक अलग से समरी बनाने में, जो आप जिनको सिर्फ जिन शेयर्स को आप पर्टिकुलरली चाहते हैं कि आप डेली बेसिस पे उनको आप मॉनिटर करें। ऑब्वियसली लेट्स से अगर आपके माइंड में 10 शेयर्स हैं, जो 10 शेयर्स आपको लगता है कि ये अच्छे पोटेंशियल शेयर्स हैं मेरे लिए, विच कैन गिव मी प्रॉफिट्स, तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप रोजाना जाएंगे और 100 कंपनीज के शेयर्स डेली उसमें से ढूंढेंगे। सो कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां पे आप सिर्फ उन 10 शेयर्स को या उन 5 शेयर्स को आसानी के साथ देख सकें, विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन गोइंग थ्रू ऑल द शेयर्स अगेन एंड अगेन एंड फाइंडिंग द पर्टिकुलर शेयर यू लुकिंग फॉर। सो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं, मैं अभी आपको अगले स्क्रीन में वो भी दिखा देता हूँ। बट ओवरऑल दिस इज द मार्केट समरी का जो ओवरऑल ब्रीफ। इसके अलावा मार्केट एक्टिविटी में अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्राफ्स और मार्केट की स्टेटस और ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वॉल्यूम्स वगैरह, ये आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगी। होम पेज पे आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। टिकर का मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे टिकर के ऊपर आप सारी चीज़ तमाम देख सकते हैं, लाइव समरीज वगैरह। इसके अलावा डेटा पोर्टल में आते हैं तो डेटा पोर्टल में डेटा से रिलेटेड तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जो आप मार्केट की क्लोजिंग वगैरह, हिस्टोरिक डेटा, सेक्टर ओवरव्यू, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। देखिए स्टॉक स्क्रीनर का यहाँ पे जिक्र है जिसकी भी बात कर रहे हैं, ये हम आगे चल के देख लेते हैं। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर स्क्रीन जहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर की बात हो रही है। सो स्टॉक स्क्रीनर में बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज, आपने करना ये है कि आपने अपनी मर्जी के शेयर्स यहाँ पे सर्च करने हैं, और सर्च करने के बाद ऐड कर देने हैं। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज के पहले तो ये है कहाँ पे फीचर। सो व्हेन वंस यू गो ऑन टू द डेटा पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डॉट psx.com.pk, फिर जब आप जाते हैं तो देन यू नेविगेट टू द dps.psx.com.pk। जब आप जाएंगे तो यू विल हैव अ वॉच लिस्ट। ठीक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, सो यू विल बी एबल टू हैव द वॉच लिस्ट का फीचर। वॉच लिस्ट में जाके आप अपनी मर्जी के जो भी शेयर्स हैं, लेट्स से 5 शेयर्स हैं, वो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसका मैं आपको एक कोशिश करता हूँ छोटा सा डेमो देने के लिए। मैं जस्ट take you to the data portal real quick. So we were talking about the screener. So यहाँ पे आपके पास स्क्रीनर में आप अपनी मर्जी से सर्च करके कौन से इंडेक्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेक्टर वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ सेक्टर चूज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा मजीद आपको सर्च करना है तो सर्च का फीचर भी यहाँ पे मौजूद है, दैट यू कैन एक्सेस। एंड इसके अलावा सेक्टर की समरीज, हिस्टोरिकल डेटा, ग्राफिकल व्यूज, ये तमाम चीज़ें भी यहीं पे आपको डेटा पोर्टल पे अवेलेबल होंगी। लेट मी जस्ट आल्सो टेक यू थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया, ताकि आपको उसकी भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि यहाँ पे किस तरह की चीज़ें। ये दिस टिकर इज मोर लेस द सेम, बट दिस एरिया विच इज द ग्राफिकल व्यू ऑफ द मार्केट, ये एक एडिशनल चीज़ है जो यहाँ पे डेटा पोर्टल पे आपको मिलेगी। ये आपका टॉप 10 सेक्टर्स के हिसाब से आ रहा है, जो कि अगर आप इस पर हवर करेंगे तो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कमर्शियल बैंक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे तमाम मौजूद हैं। ये इनके कलर्स के हिसाब से यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। इफ़ यू स्विच टू द टैब टू द टॉप 10 सिंबल्स, टॉप 10 सिंबल्स कौन से इस वक्त हैं करेंटली, ये आपको तमाम इसकी डिटेल्स यहाँ पे ग्राफिकल व्यू में मिल जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन के कितने महीनों का डेटा है, आप किस तरह से देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हैश कॉल है, देन WTL, इस तरह ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। देन सिंबल्स की पोजीशंस हैं वो भी आप यहाँ पे एडवांसिंग, डिक्लाइनिंग, अनचेंज, जीरो वॉल्यूम वाले तमाम आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। So last part I was talking about related to the data portal was the watch list. So अगर आप data portal पे आए, you click on the watch list right here. वॉच लिस्ट आपके पास अभी करंटली, जैसे आप पहली दफ़ा क्योंकि इसको खोलेंगे तो दिस शुड बी एम्प्टी, जैसे ये अभी यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। सो यू नीड टू बेसिकली ऐड आपकी अपनी मर्जी के सिंबल्स, ताकि यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड हो और आप उनको देख सकें। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से TRG, सो यू ऐड इफ यू वांट टू एड इट टू योर वॉच लिस्ट। अगर आपने TRG ऐड करना है तो TRG आपने ऐड किया। इसके अलावा लेट्स से अशफाक टेक्सटाइल मिल्स आपने ऐड कर दिया। इसके अलावा
आपने ऐड कर दिया हाईटेक ल्यूब्रिकेंट्स, और दो तीन कोई भी और अपनी मर्जी के मुगल स्टील सुकूक्स आपने ऐड कर दिए. So what happens is कि once you add these symbols over here into your watch list, the best part is not only that you can keep on tracking them throughout the day, but also these get saved into your browser's cache. तो होगा ये कि आज अगर आपने इसको सबको मॉनिटर कर लिया है, और लेट्स से अगर आप कल के दिन वापस इस वेबसाइट को खोलते हैं, इस जगह पे आते हैं, even then you shall be able to see the details as is it is right now. ये सारा डेटा वहाँ मौजूद रहेगा. आपकी वॉच लिस्ट के अंदर जो आपने सिंबल सिलेक्ट किए हैं, 5 किए हैं, 6 किए हैं, जितने भी किए हैं, वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने ब्राउजर बंद कर दिया है या आपने रिफ्रेश कर दिया है. दो शुड बी देयर. हाँ, अगर आप कैशे क्लियर कर देते हैं अपने ब्राउजर का, तो उस सूरत में चांसेस आर कि ये रीसेट हो जाएगा, एंड देन यू विल प्रॉब्ली हैव टू एडिट अगेन. बट यू हैव दिस ऑप्शन कि आप यहाँ पे वॉच लिस्ट को ऐड कर सकिए. फॉर सम रीजन आजकल कनेक्टिविटी थोड़ी सी वीक है ड्यू टू द इंटरनेट इशू ओवरऑल, जो आउटेज वगैरह का मसला है, तो शायद उस वजह से इस वक्त ये करंटली ठीक तरह लोड नहीं हो रहा है. बट आई थिंक आई गिवन यू द ओवरव्यू. आप उसके थ्रू अपना जो है वॉच लिस्ट बना सकते हैं. आई वुड रिकमेंड कि वेबिनार खत्म होने के बाद अपनी वॉच लिस्ट ज़रूर बनाएं और ट्रैकिंग करना शुरू करें, और माई पोर्टफोलियो को साथ में साइन अप करके इन दोनों को साइड बाय साइड लेके चलें, ताकि आपको अच्छे तरीके से एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने का तजर्बा हासिल हो, सो दैट इवेंचुअली यू कैन ओपन अकाउंट विद द रियल अमाउंट, एंड देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इट. सो स्टॉक स्क्रीनर और वॉच लिस्ट के बाद हम आगे अगर बढ़ें, तो इन्वेस्टर रिलेटेड इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है. सो यही सब चीज़ें हम जो डिस्कस करते आए हैं इन 3 वेबिनार्स में, उसके जो बेसिक पॉइंटर्स हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक ब्रोकर कैसे चूज करें, अकाउंट कैसे खुलवाएं, इसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप के CRF फॉर्म, और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें जो हैं, वो तमाम आप जो हैं यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं. इसके अलावा वो हजरात जो आप जो किसी कंपनी को ओन करते हैं, किसी कंपनी के की पोजीशन पे मौजूद हैं, वो अपनी कंपनीज को लिस्ट करवाना चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में विद द पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल, उन हजरात के लिए लिस्टिंग का सेक्शन यहाँ मौजूद है. सो यू कैन navigate to the listing वाला area, and that can then get information about the listing processes. और ब्रोकरेज फर्म और इन सब चीज़ों की डिस्कशन हम कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी चीज़ें कहाँ पे मौजूद हैं. सो आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, एंड आई थिंक दैट वुड बी इट फॉर टुडे. जो हजरात जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं, वो प्लीज़ अपने क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर लीजिए. सो वन बाय वन आई वुड ट्राई टू आंसर टू ऑल द क्वेरीज, एंड yeah, so meanwhile you think of your questions and you drop it in the Q&A section. Let me just begin answering to the ones that I haven't already. So जो लोग attendees हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज अपनी क्वेरीज शेयर कीजिए, ताकि इनके जो हैं वो रिस्पॉन्स हम आपको दे सकें आपके क्वेश्चंस के. ऑड लॉट के बारे में पूछा जा रहा है. तो बेसिकली इट रेफर्स टू एन ऑर्डर अमाउंट फॉर अ सिक्योरिटी दैट इज लेस देन द नॉर्मल यूनिट ऑफ ट्रेडिंग फॉर एन एसेट. डिविडेंड यील्ड जो है बेसिकली फाइनेंशियल रेशियो होता है जो मेजर करता है परसेंटेज ऑफ कंपनी के शेयर प्राइस की, जो कि पेज आउट इन डिविडेंड्स ईच ईयर. उसकी कैलकुलेशन जो है वो डिवाइड की जाती है एनुअल डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से. दैट वुड बी द डिविडेंड यील्ड. और आपका प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ, पीईजी इज बेसिकली, जो कि आपने पूछा पीईजी क्या चीज़ है, तो प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ है. इट्स बेसिकली रेशो जो कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, मैट्रिक वैल्यूएशन मैट्रिक है बेसिकली, जो यूज़ किया जाता है स्टॉक्स के लिए. इट्स बेसिकली बिल्ट अपॉन द पीई रेशियो बाय कंसिडरिंग एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ एंड नॉट जस्ट द करंट अर्निंग्स. इसके अलावा आपने पूछा है कि पोर्टफोलियो का लिंक, मैं बस अभी शेयर कर लेता हूँ आपके साथ ये सारे लिंक्स. ब्रोकर की फी का आपने पूछा इज इट फिक्स और बाय PSX. इट देयर इज अ विंडो जो कि डिफाइन की गई है कि इस रेंज के अंदर कमीशन जो है या ब्रोकर फी जो है वो चार्ज की जाएगी. वो एक विंडो डिफाइन की गई है जो कि इट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन
योर पोर्टफोलियो। तो उसके लिए हम आपको रिकमेंड ये करते हैं, वी एडवाइज यू टू डिस्कस विद योर ब्रोकर, जिनके साथ आप अकाउंट खोल रहे हैं या जिनके साथ आपका अकाउंट मौजूद है। आप उनसे एग्जैक्ट जो है वो परसेंटेज का फिगर लीजिए, ताकि आपको एक कंप्लीट जो है वो एक कंक्लूसिव आपके पास आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये मुझे पर ट्रांजैक्शन जो है वो चार्जेस जो है मुझसे डिडक्ट किए जाएंगे। सो यू शुड नो दैट। ठीक है, आपने पूछा है कि खालिद साहब ने पूछा है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी की डिटेल्स अगर दिखा दें। अभी देख लेते हैं वो। इसके अलावा अ, ठीक है। हाउ आई डिपॉजिट मनी इन द सीरीज अकाउंट टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ये सिंपली आपका जब अकाउंट, वंस यू ओपन द अकाउंट विद द ब्रोकर, you'll be sharing it through any your from your bank through an online wire, or perhaps you can make a check and deposit it with that. And then once your transaction is done, you get a confirmation that your transaction has been successfully completed. Then you will be able to make the kind of transactions you want to do in terms of buying your desired shares and adding it to your current portfolio. That's how you would do that. So जो आपने पूछा कि किसी शेयर के बारे में पर्टिकुलरली बताएं, so उसके बारे में आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी द स्क्रीन। अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, गुड। सो सबसे पहले वो हजरत जिन्होंने पूछा कि माय पोर्टफोलियो का लिंक बता दें, तो मैं आपको, लेट मी टेक यू टू इट। मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ, ताकि लेट्स फर्स्ट गो टू द psx.com.pk। सो यू आर एट psx.com। ये बेसिकली कॉर्पोरेट वेबसाइट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। नाउ आपको नेविगेट करना होगा डेटा पोर्टल पे। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये यहाँ पे psx डेटा पोर्टल। वंस यू डू दैट, अब आप यहाँ पे आ जाएंगे। देन यू गो टू द माई पोर्टफोलियो राइट हियर। ये यहाँ पे, इसको आप क्लिक कीजिए, तो आप आ जाएंगे पोर्टफोलियो वाले पेज पे। ये लिंक मैं आपको चैट में भी शेयर कर दिया है मैंने। आप यहाँ से भी क्लिक करके इसको, इस पेज को विजिट कर सकते हैं। मीन वाइल यू डू दैट, वो हजरत जिन्होंने ब्रोकरेज के बारे में पूछा था कि हाउ टू फाइंड अ ब्रोकर वाला पेज, फाइंडिंग अ ब्रोकर वाला पेज, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट ड्रॉप इट डाउन इनटू द चैट सेक्शन रियल क्विक। ये भी मैंने चैट में आपके साथ शेयर कर दिया है। इसके अलावा वाइल वी आर एट इट, मैं क्विकली आपको चंद इंपॉर्टेंट लिंक्स और हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सहूलत अकाउंट किस तरह खोला जाता है, उस पर मजीद अगर आप जानना चाहते हैं, तो मैंने आपके साथ एक एनिमेशन शेयर कर ली है चैट में। आप लोग उसे भी देख सकते हैं, और उसको फॉलो करते हुए भी आप सहूलत अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा रोशन एक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो कि आपने पूछा कि रोशन एक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाने के लिए ट्यूटोरियल शेयर कर दें, तो मैंने चैट में आपके साथ रोशन एक्विटी इन्वेस्टमेंट में अकाउंट किस तरह खोला जाता है उसका भी लिंक शेयर कर दिया है। तो वेबिनार खत्म होने के बाद आप उसको भी विजिट करके मजीद उसकी एनिमेशन को देख के अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा आई वुड रियली advise that you go to the Pakistan Stock Exchange website and make sure you visit the REI page, which is the Roshan Equity Investment page. Because if you do that, you'll be able to get a lot more information that you currently have right now. Let me try to take you to that page as well while we are at it, ताकि अगर कोई चीज़ आप मिस कर जाएं तो वो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाए। So you go to the navigation area, products and services, and you go to the RDA or REI, and you shall be able to get all the nitty-gritties that you require in order to uh, invest in the stock exchange while living abroad. So you can fill up this form and get more information. यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि नाम, ईमेल एड्रेस और सेल फोन डाल दें अपना, और वो ब्रोकरेज फर्म सेलेक्ट कर लें जिनके साथ आप अकाउंट खुलवाने में इंटरेस्ट रखते हो, और वो आप उसके बाद सबमिट करेंगे, तो आपके पास आपकी क्वेरी हम तक पहुंच जाएगी, एंड देन आवर टीम विल गेट बैक टू यू एंड हेल्प यू आउट विद इट, कि आपको आसानी के साथ अकाउंट आपको खुलवाया जा सके। ना कमिंग टू द रोशन एक्विटी पेज, यहाँ पे आपके पास
तमाम डिटेल्स क्या कुछ है मैं आपको बता देता हूँ. सो अगेन, list of banks, which is the most important thing here for the Rothschild equity investment clients. Then list of brokerage firms. Obviously brokerage firm के साथ खोलेंगे वो चाहिए आपको. Frequently asked questions और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें आपके पास यहाँ मौजूद हैं. थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्रोकरेज हाउसेज आप देख ही सकते हैं कौन कौन से हैं. इनके साथ आप अकाउंट खुलवा सकते हैं आरबीआई का. इसके बाद आपका लिस्ट ऑफ बैंक्स ऑफरिंग रॉशेड एक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है. यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं. मजीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए तरीक़ेकार, कुछ स्टैटिक ग्राफिक्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से अकाउंट खुलवाना है. ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मजीद बाय एंड सेल ट्रांजैक्शंस के बारे में, किस तरह से वो प्लेस की जाती हैं, कैसे प्लेस होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. बैकएंड का प्रोसेस भी यहाँ पे मौजूद है. आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू दैट एज वेल. फिर सेल ट्रांजैक्शन और बैकएंड का सारा प्रोसेस वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. देन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में बाद में आते हैं रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे आके आप वो भी देख सकते हैं. बाकी इसके अलावा वाई टी टी का जो पूछा है, तो ईयर टू डेट बेसिकली, ईयर टू डेट रिटर्न रेफर्स टू द प्रॉफिट और लॉस जनरेटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर. इसकी कैलकुलेशन या सब्सट्रैक्शन जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू से की जाती है, करंट वैल्यू, और उसको डिवाइड करते हैं स्टार्टिंग वैल्यू पे. सो द फिगर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट टू इनटू अ परसेंटेज. इसके अलावा जो आपने पूछा कि लास्ट पार्ट का, जी बिल्कुल, इसकी रिकॉर्डिंग भी हम यूट्यूब पे अवेलेबल कर देंगे. आप इसको डेफिनेटली एक्सेस करके दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिस आउट कर गए हैं तो आप देख सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, वी आर हियर फॉर लेट्स से अनदर 5 मिनट्स. अपने सवालात प्लीज़ शेयर कीजिए. कोई चीज़ अगर रह गई है तो वी वुड लाइक टू कवर दैट एज वेल. अच्छा, आपने पूछा है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस रीड की जा सकती है डिफॉल्टर कंपनीज. आई थिंक ये today's webinar uh, did not really incorporate these nitty-gritties, इस तरह की technicalities. I think we should won't be able to cover this today. So हम ये नोट कर लेते हैं अपने पास, एंड इन द फ्यूचर वंस विल ट्राई कि ये वाली चीज़ आपकी ये एरिया जो है ये कवर कर लें. इसके अलावा आपने पूछा कि कैन यू बिकम अ ब्रोकर और इज देयर एनी रिक्वायरमेंट. जी बिल्कुल, देयर आर रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ ब्रोकर. वो भी आपको वेबसाइट पे ही मौजूद हैं. आप वहाँ से वो हासिल कर सकते हैं. यहीं पे आप रिसोर्सेज में जाएंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं उसको. एंड कैन यू शेयर द लिंक. लिंक्स मैंने सारे शेयर कर दिए हैं. और जो लिंक अगर कोई रह गया है तो, या कोई और चीज़ आप लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ बताइए. देयर इज अनदर क्वेश्चन रिगार्डिंग द अर्निंग पार्ट. ओके, दो चीज़ें हैं. एक तो वन क्वेश्चन इज, can you share all parts of the webinar slides. We won't be able to share with you the slides in particular, but we will be sharing with you the recordings of all three webinars. वो आप जाके वहाँ से जो भी अगर कोई चीज़ मिस आउट कर रहे हैं तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं. एक सवाल ये कि हाउ टू अर्न, या हम शेयर से किस तरह देखें. दो तरह से आप इन्वेस्टमेंट करके जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो बेसिक दो तरीके हैं. द फर्स्ट वन बीइंग ऑन द ट्रेडिंग, कि आपने शेयर खरीदा, लेट से आपने 5 रुपए का शेयर खरीदा, एंड देन यू सेल द शेयर फॉर 6 रुपीज और 7 रुपीज. तो आपको उसके ऊपर जितना पैसे इंक्रीज हुए होंगे, जितनी उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, उतने का आपको प्रॉफिट मिलेगा. सो दैट्स कॉल्ड द ट्रेडिंग बेनिफिट या प्रॉफिट. इसके अलावा डिविडेंड्स का ऑप्शन मौजूद है. जो कंपनीज आपको डिविडेंड ऑफर कर रही हैं वो अपने प्रॉफिट में से, सो इफ़ यू आर होल्डिंग ऑन टू देयर शेयर्स, आपने वो शेयर्स लिए हैं तो उस पर आपको डिविडेंड मिल जाएगा प्रॉफिट के ऊपर. सो दीज आर टू ऑफ द मेन ways, the two of the key ways to make money from the stock market. एक चीज आई थिंक रह गई है. लेट्स जस्ट कवर दैट रियल क्विक. प्लीज कंफर्म कीजिएगा अगर आपको पोर्टफोलियो वाली स्क्रीन डेटा पोर्टल दिख रहा है तो लेट मी जस्ट क्विकली नेविगेट एंड शो यू. आप में से किसी एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि किसी कंपनी के बारे में अगर आप दिखा दें. थैंक यू. सो
यहाँ पे वो देख लेते हैं हम. सो ऑल यू हैव टू डू इज गो टू द डेटा पोर्टल रीड क्विक. सिंबल्स वाली जगह पे आए, सर्च कर लें अपनी मर्जी का कोई भी एक शेयर. फॉर एग्जाम्पल अरूज इंडस्ट्रीज लिमिटेड. यू जस्ट रैंडमली मैंने ये चूज किया है कोई से भी शेयर. तो आप वो चूज करेंगे. यहाँ पे उस कंपनी के शेयर से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. अगर आप कोई और देखना चाहते हैं तो कोई भी एनीथिंग ऑफ योर सिल्क बैंक लिमिटेड देखना चाहते हैं तो आप सिल्क बैंक देख सकते हैं. यहाँ पे आपके पास सिल्क बैंक आ गया. इसके अलावा इफ यू लेट्स से इफ यू वांट टू सी टीआरजी और एनी अदर, you can simply search and navigate. So you'll basically see the current price of the share. और आपकी यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर से ताल्लुक है. तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन से ताल्लुक है इस पर्टिकुलर शेयर का. और यहाँ पे इसकी सारी ग्राफिकल आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं. 1 दिन से लेके 5 साल तक का जो भी डेटा मौजूद होगा आप यहाँ से नेविगेट करके क्लिक करते हुए देख सकते हैं. बाकी बहुत सारी और चीज़ें भी आपको यहाँ मिल जाएंगी. कंपनी का प्रोफाइल देख सकते हैं आप यहाँ पे सारा. की पीपल जो इन्वॉल्व हैं इस कंपनी में, सीईओ, चेयरपर्सन, कंपनी सेक्रेटरी और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन किसी भी एक इन्वेस्टर को जो शायद चाहिए होंगी, जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर आई एम इन्वेस्टिंग इन द राइट काइंड ऑफ शेयर और कंपनी. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगी. इसके अलावा अनाउंसमेंट्स में जाके आप मजीद डिटेल्स देख सकते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हैं उनके सारे डेट वाइज. आप यहाँ से डाउनलोड करके वो भी देख सकते हैं. इसके अलावा इफ़ यू स्विच ऑन टू दिस अदर टैब दैट्स कॉल्ड बोर्ड मीटिंग्स. सो बोर्ड मीटिंग्स से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं, क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं. अदर्स के अंदर इसके इन दोनों चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस प्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन, जो प्रेजेंटेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. चेंज ऑफ डायरेक्टर हुए हैं, कोई और चीज़ हुई है, डिस्क्लोजर्स हुए हैं किसी और चीज़ के, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो बेसिकली पे आउट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आप किसी भी कंपनी की यहाँ पे सिंपली डीपीएस पे आके देख सकते हैं. और वंस यू हैव ऑल दीज डिटेल्स, फॉर एग्जांपल आपने ये सारी चीज़ें देखी टीआरजी की और आपको लगा कि यू वांट टू फाइनली मेक योर ट्रेड एंड मे बी परहैप्स यू वांट टू प्रैक्टिस इन द virtual environment, you can do that through the my portfolio feature from here. Or if you want to do it in the real market, you can do it in the real market too by opening an account with a broker of your choosing. And with that, we would like to conclude the session. I hope uh, we explained everything that was part of the presentation. And if you have any more questions, you can drop your queries at info@psx.com.pk, or you can visit our website, Pakistan Stock Exchange, psx.com.pk. And lastly, you can contact us through one of our social media channels, Facebook being the most active right now. Twitter का आपको पता है कि थोड़ी सी उसमें there are currently blockages थ्रू आउट द नेशन, तो वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी के थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं. बट फेसबुक, लिंक्डइन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं. और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी हम मौजूद हैं. सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज ड्रॉप योर क्वेरीज एंड वीड लाइक टू get back to you as soon as we can. Thank you very much everyone for participating. I hope you had a good session. Please do visit all the links that I shared in the chat and comments, chat and Q&A section. उनको ज़रूर visit कर लीजिएगा and go through those tutorials so you shall be able to open your account easily. All right, thank you very much everyone. You have a good day. Allah Hafiz.